student. So next method given in your multiplication chapter is standard method. So we usually solve multiplication with standard method. Okay, so it is very this rule you know from earlier class, from previous class. Okay, so what is step? Only we will recall that steps, and then we will solve the questions. Okay, so here is given you have to multiply 12 into 23. So like this you wrote, आप लिखते थे ना इस तरह से, उसी तरह से आप लिखोगे. फिर यहाँ पर क्या करना होगा, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे. 3 से मल्टीप्लाई किए 12 में, और फिर 36 आया. फिर 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए. एक्चुअली 2 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, 23 मीन्स क्या होता है, 20 प्लस 3. तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आएगा 240. देन आफ्टर यू विल ऐड. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल because you already learned this method in your previous class. So like this you have to solve these 6 questions in your notebook, and one question is given here. is here you have to spot the error. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एरर स्पॉट करना है और फिर से इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे सही से सॉल्व करना है विद द सेम नंबर 18 into 15. ओके, so next method is given for multiplication of 3-digit number. Multiplication of 3-digit number. So we shall follow the same procedure for multiplication of 3-digit number. Carefully observe the following examples. What you have to do, let's see again. 234 you have to multiply by 2. 2 4 ja 8, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4. Okay, multiply with 2 by one's place digit. Multiply 3 tens by 2. Multiply 200 by 2, that is 4. And finally your answer is 468. 468, how do you write? 400 plus 60 plus 8. Okay, so it is very simple, this question. Next example, let us see. Multiply 114 by 21. So 21 means 20 plus 1. Okay, 1 4 ja 4, 1 1 ja 1, 1 1 ja 1. Clear? 2 with now you have to multiply with 20 in 114. So multiply here, you will get answer this, and after multiplication you got this answer. Now you in this multiplication you have to fill some boxes have given in some boxes have given not numbers, so you have to fill in these boxes. इस बॉक्स में आपको नंबर फिल करना है, तो आप मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, क्लियर? आई थिंक now you have a big question, big confusion. what we have to write in these columns. इसमें क्या लिखना है, इसमें तो मैम ने बताया ही नहीं. सो मैंने देखो बहुत इजी है, इसमें बताएं क्या लिखना है आपको. फर्स्ट आपको बताओ इसमें ये क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हो. 135 को एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 30 प्लस 5. ओके, एंड हेयर यू विल राइट. यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ पे आपने 236 में 5 से मल्टीप्लाई किया है. इस वाले कॉलम में किससे किससे मल्टीप्लाई किया है, 236 में 30 से मल्टीप्लाई किया है, और इस कॉलम में आपने 236 में 100 से मल्टीप्लाई किया है. समझ में आई बात? ओके, आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है इसकी हेल्प ले करके कर सकते हो. वैसे मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट मैंने बताया है आपको कैसे सॉल्व करना है. चलिए मैं आपको एक बार और क्लियर करके लिख के दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 30
plus 5. Here you will write 236 into 5. Here you will write 236 into 30. Here you will write 236 into 100. Clear? And after you will add here, and in the last you write product. Okay, so this question you have to solve in your notebook. Clear? Now I am moving on word problems. Word problems is very easy, and you have to understand what is written in the sentence. क्या लिखा है सेंटेंस में, क्या कह रहा है, और किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जब आप वर्ड्स को समझ जाओगे कि किस वर्ड्स की क्या मीनिंग है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है. सो हियर इट इज सेइंग, व्हाइल वॉकिंग अराउंड द हिल्स ऑफ कुर्ग के हिल पर वॉकिंग करने के समय क्या हुआ कि आन्या ने स्पॉट किया एक ग्रोसरी शॉप को देखा. ओके, she took 500 from her mother and bought a few things. He handed over the bill to her mother. उसने 500 रुपीज़ अपने मदर से लिया और उसने कुछ सामान खरीदा, फिर उसने अपनी मम्मी को बिल हैंडेड ओवर कर दिया. इस बिल में देखिए क्या लिखा है. लेट अस लुक एट इन दिस बिल. फर्स्ट इट इज रिटन हियर बिल नंबर, डेट, नंबर ऑफ आइटम्स एंड टोटल अमाउंट. सो अमनिल, it is ice cream vanilla 1 liter pack of 200 rupees, because here is given 2 quantity and rate of per quantity, per one quantity is 100. So 2 quantity, 2 ml prices became 200, and para 5 rupees of 1 quantity, and she has taken 3 quantity of it. So total price became here 15, and after adding 215 your answer came. Total amount of bill will be 215. Okay, so here is given one question. How has shopkeeper calculated the price of 2 ice cream packs? शॉपकीपर ने 2 आइसक्रीम पैक्स के प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया है. ईच पैक ऑफ आइसक्रीम कॉस्ट 100 रुपीज़. सो शॉपकीपर मल्टीप्लाइड द प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम पैक बाई 2. इसलिए अगर एक आइसक्रीम के पैक का प्राइस है 100 रुपीज़, तो अगर निकालना होगा 2 पैक आइसक्रीम की प्राइस, तो क्या करना होगा, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 200 हो गया. ओके, 200 प्राइस किसका हुआ, 2 आइसक्रीम पैक्स का. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज ही कैलकुलेटेड द प्राइस ऑफ 3 पैक्स ऑफ पीनट्स. 3 पैक्स ऑफ पीनट्स का प्राइस उसने कैसे कैलकुलेट किया होगा. तो 1 पैक ऑफ पीनट्स का प्राइस, कितना प्राइस है, 5 रुपीज़ है. 3 क्वांटिटी उन्होंने खरीदा है, क्या नाम है, आन्या ने 3 क्वांटिटी खरीदा है, इसलिए टोटल प्राइस कितना होगा, 3 into 5 इज इक्वल टू 15. ओके, वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि एक स्टोरी बुक है जिसमें कि 200 पेज है. एक स्टोरी बुक है जिसमें 200 पेज है. अब हाउ मेनी पेजेस विल देयर बी इन 13 सच बुक्स. अच्छा, अब आप बताइए कि ऐसे ही 13 बुक्स में कितने पेजेस होंगे. तो फर्स्ट बुक में 200 है, सेकेंड बुक में कितने होंगे, 200 प्लस 200 या 200 इंटू 2. थर्ड बुक में कितना होगा, 200 इंटू 3. इसी तरह से 13 बुक्स में कितना होगा, 13 इंटू 200 पेजेस. एंड 13 इंटू 2 आपको पता है क्या होता है, 26. कितने ज़ीरो लगे हैं 200 में, 2 ज़ीरो लगे हैं. तो 26 के बाद में 2 ज़ीरो बढ़ा दीजिए, फिर इतने पेज होंगे. आई थिंक इट इज़ क्लियर. ओके, मैथ्स को समझना होता है, और जब तक आप इसको अपनी कॉपी पेन ओपन करके सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. आपको इसको पहली बार ट्राई तो करना पड़ेगा. ठीक है, इसको ट्राई करिएगा.
नहीं आएगा तो फिर आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि मैम मुझे एक इस पर अच्छे से वीडियो बना करके भेजिए, मैं खूब अच्छा सा वीडियो बना के भेजूँगी आपको, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ज़रूर समझ में आएगा। वैसे ये भी इस तरह से भी अगर मेरी आप लोग वॉइस को मेरी सुन रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ, जो लिख रही हूँ, उसे आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, इन अ फॉर्म देयर वर 127 एप्पल ट्रीज इन अ रो। एक फॉर्म में 127 एप्पल ट्रीज थे एक रो में। रो मतलब जैसे एक लाइन में, इस तरह से 127 एक लाइन में 127 एप्पल ट्रीज हैं। ओके, और टोटल रोज कितने हैं, ऐसे ऐसे करके कितने रोज होंगे, 111 रोज हैं, टोटल 111 रोज हैं। अब पूछा जा रहा है कि टोटल कितने एप्पल ट्री हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। 111 रोज हैं और 127 एप्पल ट्रीज हैं एक रो में, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। And the third example, Anya and her family went for a guided walk in Kurg. आन्या और उसकी फैमिली ने कुर्ग में एक गाइडेड वॉक के लिए गई। द गाइड चार्ज 280 रुपीज़ पर डे। सो हाउ मच वुड दे हैव टू पे फॉर 11 डेज। गाइड ने एक दिन का चार्ज लिया 280 रुपीज़। सो अब उन लोग को 11 डेज में कितना पे करना होगा। 280 प्लस इंटू 11 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखिएगा, एंड आन्या हर फैमिली पेड टू द गाइड। एक मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर में तो क्या कर रहे होंगे। जैसे 28 इंटू 11 करना है ना, 28 इंटू 11, आप क्या करो, 2 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो। ओके, 20 में आप लिखिए 2 प्लस 8। 2 प्लस 8 क्या होता है, 2 प्लस 8 8, 8 प्लस 2 होता है 10, कैरी 1 एंड 2 में 1 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 308 रुपीज़ उन्होंने पे किया है। पर इसके आगे ज़ीरो लगाना होगा क्योंकि 280 दिया गया है ना, और मैंने तो 28 में 11 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, सो टोटल उन्होंने कितना पे किया है, 3080 रुपीज़ उन्होंने पे किया है। सो इस तरह से लेट्स ट्राई 8 ये है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर से सॉल्व करोगे। ओके।